Hello everyone. So today we will start with the resistance capacitance coupling. Okay, what we did in the last class? In the last class, we did the coupling in amplifiers. We saw how we can make a multi-stage amplifier by coupling different single-stage amplifiers. And what is the need of this? To increase the voltage or the power gain, we usually couple the single-stage amplifiers to get the multi-stage amplifier. Now today we will discuss one of the multi-stage amplifiers, which is the RC coupled amplifier. Now this is the two-stage RC coupled amplifier. Here we are connecting two single-stage amplifiers. This is the one amplifier. This is the another amplifier. These two are connected by this capacitor CC. So this CC is also known as the coupling capacitor. Okay, so here we have two amplifiers that are coupled with the help of this coupling capacitor. So that's why this amplifier is known as the two-stage amplifier. Now, इसमें क्या होता है? A two-stage RC coupled amplifier is shown in the figure. The voltage divider biasing has been used in the circuit. यहाँ पर देखो जो biasing हमने use करी है दोनों amplifiers में, that is the voltage divider biasing with the help of resistance R1, R2 and RE. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है. ना ये जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है इसके हम जरूरत क्यों पड़ती है? Why do we bias the transistor? We already know, we have already done the different types of biasing circuits and we have seen that the voltage divider biasing is the best biasing. Why? Because with the help of voltage divider biasing, the operating point of a transistor does not change due to the increase in temperature and also due to the change in the current gain beta. Okay, that's why we use this kind of biasing. देखो ये यहाँ पर भी लिखा है. The biasing that we are using is the voltage divider biasing. It is provided by the emitter resistance RE and the resistances R1 and R2. Now, in this type of biasing, the operating point does not change due to the overheating or the increase in temperature, and also the operating point is independent of the AC current gain beta. इसका मतलब क्या है? अगर हमारा ट्रांजिस्टर जो है उसमें अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस केस में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ट्रांजिस्टर का वो चेंज नहीं होगा इफ वी आर यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग. मोरओवर अगर हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज हो जाता है एंड वी हैव टू रिप्लेस इट बाय द अनदर ट्रांजिस्टर, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं. Why? Because this operating point is also independent of the current gain beta. So we can easily replace the transistor by the another transistor of the same type in case of need. अगर हमें जरूरत. Next हमारा क्या है? The capacitance of capacitor CE connected across the resistance RE is large, so that its capacitive reactance is small. Thus, it allows the AC component of emitter current to pass through it, and potential difference across RE is only due to the DC component. Now, इसका मतलब क्या है? देखो जो हमारी कैपेसिटर है CE, उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RE, और ये जो हमारा कैपेसिटर है CE, इसकी कैपेसिटेंस जो है इसको हम लार्ज रखेंगे. क्यों? बिकॉज हमारी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू 1/ωc. So capacitive reactance is inversely proportional to the capacitance of this capacitor CE. तो अगर हम इस CE कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ज्यादा रखेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारी कम होगी. कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये डीसी कंपोनेंट को पास होने देता है, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, और एसी कंपोनेंट जो है उसको पास होने देता है. ठीक है, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है दैट इट ब्लॉक्स द डीसी कंपोनेंट एंड अलाउज द एसी कंपोनेंट टू पास थ्रू. ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जितना एसी कंपोनेंट है अक्रॉस दिस एमीटर टर्मिनल, वो सारा का सारा जो है हमारा वो सीई कैपेसिटर के थ्रू जो है पास हो जाता है, और इस वजह से जो हमारी वोल्टेज होती है अक्रॉस द एमीटर दैट इज आई इंटू आर ई, दैट इज ओनली द डीसी. तो अगर ये डीसी रहेगा तो इट विल नॉट इफेक्ट द इनपुट वोल्टेज विच इज द बेस टू एमीटर वोल्टेज.
ठीक है, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस कैपेसिटर सीई? इट बाईपासेस ऑल द एसी करंट फ्रॉम द एमीटर टू द ग्राउंड। इस वजह से जो एसी वोल्टेज डेवलप होती है अक्रॉस आर ई, इट विल नॉट अफेक्ट द इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, the capacitor C. Now, what is the function of this capacitor C? It couples the input AC voltage to the base of the first transistor and allows only the AC component of the input voltage to flow to it. देखो, इनिशियली जब हमने कोई AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं करी या AC इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया, उस केस में जो हमारा ये एम्पलीफायर था, इसमें से DC कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही थी। जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, द बेस टू एमीटर वोल्टेज, वो डीसी वोल्टेज होती है। जो हमारे करंट है वो सारे हमारे डीसी करंट होते हैं। अब क्या हुआ, अब हमने इनपुट एसी सिग्नल को अप्लाई किया, और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, इसको हम अप्लाई करते हैं वाया द कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं दैट इज सी। इस कैपेसिटर सी का क्या काम है, इट बेसिकली कपल्स दिस इनपुट एसी वोल्टेज टू द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर। The transistors जो है they are connected in the common emitter configuration. तो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है that input is the base. तो इसको कपल करने से क्या होगा, अब AC इनपुट वोल्टेज जब इस कैपेसिटर के थ्रू पास करेगा, तो ये कैपेसिटर जो है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ये DC कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, और AC कंपोनेंट जो है उसको अलाउ करेगा टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस टर्मिनल। Now the signal applied across the collector resistance RC of the first stage is coupled to the base of the second stage through a capacitor CC. अब क्या हुआ, इनपुट AC वोल्टेज जो है उसको हमने फीड किया फर्स्ट ट्रांजिस्टर में या फर्स्ट एम्पलीफायर में विद द हेल्प ऑफ दिस कपलिंग कैपेसिटर C. अब इस एम्पलीफायर का फंक्शन क्या होगा, नाउ दिस इज अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का फंक्शन होगा टू एम्पलीफाई दिस इनपुट वोल्टेज। अब जो हमारे पास एम्पलीफाइड आउटपुट है उसको हम फीड करेंगे टू द नेक्स्ट एम्पलीफायर, और उसको हम डायरेक्टली फीड नहीं करेंगे, उसको हम फीड करेंगे वाया दिस कपलिंग कैपेसिटर CC। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारी डीसी वोल्टेज होती है पहली स्टेज की, इट शुड नॉट बी अलाउड टू पास टू द नेक्स्ट स्टेज टू प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। हम डीसी वोल्टेज जो है उसको नहीं जाने दे सकते फ्रॉम फर्स्ट एम्पलीफायर टू द सेकंड एम्पलीफायर। तो आउटपुट वोल्टेज जो है हमारी फर्स्ट एम्पलीफायर की, उसके अंदर कुछ डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। हमें एसी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द एसी कंपोनेंट, नॉट इन द डीसी कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो डीसी वोल्टेज है, डीसी आउटपुट वोल्टेज है फर्स्ट स्टेज की, उसको हम दूसरी स्टेज पे जाने से रोकेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर को यहाँ पे सीसी से डिनोट किया है, that is the coupling capacitor. So what is the function of this coupling capacitor? It does not allow the DC component of first stage in reaching the base of the second stage. It will offer the low reactance to the AC component but will block the DC component. ठीक है, so we can say that it is the bypass capacitor for AC. AC को ये पास होने देगा, DC को पास नहीं होने देगा। तो अब ये जो आउटपुट वोल्टेज थी फर्स्ट एम्पलीफायर की, इसका जो एसी कंपोनेंट है, नाउ इट इज रीचिंग टू द बेस ऑफ द सेकंड एम्पलीफायर। सो नाउ दिस इज बिकमिंग द इनपुट वोल्टेज। अब ये हमारी जो इनपुट वोल्टेज है, नाउ इट विल पास थ्रू दिस अनदर एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर क्या करेगा, दिस विल फर्दर एम्पलीफाई दिस इनपुट वोल्टेज, और उस आउटपुट जो है उसको हम मेजर करेंगे अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर नॉट। So V naught जो है, this is representing the output of the RC coupled amplifier, and VI is the input of this RC coupled amplifier which is to be amplified. तो हमारा VI है which is representing the input AC voltage, हमारा V naught है that is representing the output AC voltage। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हमारा आउटपुट सिग्नल है RC coupled amplifier का, that will be in phase with the input signal. Why? Because फेस जो है यहाँ पर, इट हैज बीन रिवर्स्ड ट्वाइस बाय द एम्पलीफायर्स। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई तो करता है,
वी गेट द एम्पलीफाइड सिग्नल, बट जो हमारा आउटपुट होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है विद द इनपुट सिग्नल। तो पहला जो हमारा एम्पलीफायर है वो हमारा आउटपुट सिग्नल जो है उसको 180 डिग्री जो है रिवर्स कर देगा। फिर अब ये पास होगा थ्रू दी सेकंड एम्पलीफायर, तो सेकंड एम्पलीफायर जो है इसको फिर फर्दर जो है 180 डिग्री से रोटेट कर देगा। तो हमारे पास फाइनली आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा इन दिस फॉर्म। ठीक है, देखो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, लेट्स से दिस इज द इनपुट एसी सिग्नल। जब ये पास होगा फर्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट से, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा फर्स्ट एम्पलीफायर का वो क्या आएगा, वी गेट द एम्पलीफाइड आउटपुट बट विद 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। नाउ दिस इज फेड इनटू द सेकंड एम्पलीफायर। सेकंड एम्पलीफायर का अब जो आउटपुट होगा वो एम्पलीफाई होगा और ज्यादा, बट इट इज नाउ अगेन रोटेटेड बाय 180 डिग्री। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आया, अब जो फाइनल आउटपुट सिग्नल आया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, नाउ इट इज इन फेज विद दिस इनपुट सिग्नल। व्हाई? बिकॉज फेज हैज बीन रिवर्स्ड ट्वाइस सिंस वी आर यूजिंग अ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसकी वर्किंग होती है मेन, कि हमने इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करी, वो फिर हमारी एम्पलीफाई होगी एंड इट विल अंडरगो टू स्टेजेस। तो हमारे पास जो एम्पलीफाइड आउटपुट होगा उसकी एम्पलीफिकेशन जो है ऑब्वियसली ज्यादा होगी। एंड व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ दिस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, वी ऑलरेडी नो जो हमारा वोल्टेज गेन होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, वो हमारा प्रोडक्ट होता है ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीफायर जो इसमें कनेक्टेड है। ये हमारा टू स्टेज एम्पलीफायर है, तो लेट्स से A1 जो है हमारा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज, A2 is representing the voltage gain of the second stage. So what will be the voltage gain of the amplifier? It will be simply A1 into A2. So A is representing the total voltage gain of the RC coupled amplifier. A1 and A2, these are the respective gains for the two stages. तो अगर दो की जगह हम n stages यूज करते तो हमारा वोल्टेज गेन क्या होता, वो ये होता। यहाँ पर n जो है वो हमारा 2 है। नेक्स्ट, जब हमने कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करा था, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो वहां पर हमने वोल्टेज गेन जो है उसके एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। इट केम आउट टू बी -GM इंटू आर सी। ठीक है, वो हमारा आया था -GM इंटू आर सी। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पर निकाला था जहां पर GM हमारा क्या था, GM इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AC करंट गेन बीटा and the input resistance Ri, and this GM is called the transconductance of the transistor. तो हमारा वोल्टेज गेन क्या था, -GM इंटू ये रेजिस्टेंस RC। तो अब हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा when we are using two stage amplifier, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर ही हम है हमारा। डिफरेंस क्या है, अब सिंगल स्टेज की जगह वी हैव टू स्टेज एम्पलीफायर। तो इसका जो वोल्टेज गेन होगा इट विल बी इक्वल टू -GM इंटू RC प्राइम। अब जो RC प्राइम होगा वो क्या होगा, देखो अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस नहीं है, वी हैव टू रेजिस्टेंसेस। एक तो ये RC है और एक ये R0 है। ठीक है, अब हमें इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा और ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमारी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/RC प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/RC प्लस 1/R0। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है जब दो रेजिस्टेंसेस जो है हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में हम टोटल रेजिस्टेंस जो है कैसे निकालते हैं। 1/RC प्राइम हमारा हो गया 1/RC प्लस 1/R0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे टू गेट RC प्राइम। तो 1/RC प्राइम हमारा यहाँ से क्या हो गया, इट विल बी R0 प्लस RC डिवाइडेड बाय R0 इंटू RC। तो RC प्राइम क्या हो जाएगा, इट विल बी RC इंटू R0 डिवाइडेड बाय RC प्लस R0। तो यहाँ से हमारे पास आई दिस वैल्यू ऑफ RC प्राइम। सो नाउ दिस वोल्टेज गेन ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर विल बी इक्वल टू -GM इंटू RC प्राइम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा वोल्टेज गेन है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांस कंडक्टेंस।
GM, that is equal to beta AC upon RI, and it is also depending upon this RC prime, where RC prime is RC into R naught divided by RC plus R naught. एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जो वोल्टेज गेन है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की, ये इस पे भी डिपेंड करती है द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द एम्पलीफायर इज यूज्ड। हम जो एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं उसको हम कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वोल्टेज गेन। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं तो वहां पर हमारा वोल्टेज गेन जो है स्मॉल होता है, बट इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज। और अगर हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं तो वहां पर जो हमारा वोल्टेज गेन है इट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं तो उस रेंज में जो हमारी वोल्टेज गेन होती है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ, जिसमें हम देखेंगे द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन विद फ्रीक्वेंसी। सो हम जो इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज है, लेट इट बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, द लो फ्रीक्वेंसी रेंज, द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। लो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज गेन है, दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी रेंज। यहाँ पर जो वोल्टेज गेन है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट voltage. Then in the middle frequency range or mid frequency range, the voltage gain is practically constant, and in the high frequency range the voltage gain decreases with increasing frequency. तो अब हम इस frequency response graph को study करेंगे और हम देखेंगे that why this variation of voltage gain is there with the change in frequency. From this frequency response graph, it is clear that at low frequencies, voltage gain is small and increases with frequency. The voltage gain is fairly constant in maximum for the middle frequencies and again decreases at high frequencies. तो अब हम study करेंगे the behavior of this voltage gain with frequency, that is the frequency response graph. तो सबसे पहले हम देखेंगे what happens to the voltage gain at low frequencies. Then we will see in the middle frequency range and then we will see in the high frequency range. Now at low frequencies what happens, we already know जो हमारी कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है XC, that is equal to 1 upon omega C. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो सिर्फ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे ही नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर भी डिपेंड करती है। तो हम अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं, एंड वी कैन से जो हमारा कैपेसिटर है इट विल प्रोवाइड वेरी low resistance to the AC component and it will be easily passed through the capacitor. But this reactance also depends upon this frequency omega. Omega is 2 pi into nu. So what happens at low frequencies, जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है CC, जो कपल कर रहा है फर्स्ट स्टेज को दूसरी स्टेज से, वो हमारा ऑफर करता है हाई रिएक्टेंस, क्योंकि ओमेगा और न्यू अगर हमारा कम होगा तो एक्सी हमारा ज्यादा होगा। ये अगर हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा तो उससे क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सिग्नल है उसका जो कुछ पार्ट है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा फर्स्ट स्टेज को दूसरी स्टेज पर। So as a result, a part of the output signal of certain stage drops across this coupling capacitor CC and the remaining part passes to the next stage. सारा का सारा पार्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाएगा at low frequencies because this coupling capacitor CC offers high reactance to this output signal of the first stage. So this will definitely in turn decrease the voltage gain. So from here what we have seen that the lower is the frequency of the input signal, higher will be the reactance of this coupling capacitor CC and more will be the reduction in the output voltage V0. तो जितनी कम frequency होगी उतना ही कम voltage gain होगा, पर जैसे जैसे frequency जो है हमारी बढ़ेगी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर का सीसी का वो कम होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर कम होगा तो हमारा वोल्टेज गेन जो है वो बढ़ेगा।
So that is why in the low frequency range the voltage gain जो है it increases with increase in frequency. Now there is another component due to which the voltage gain decreases at low frequencies, and this component is the bypass capacitor CE, जिसको हमने कनेक्ट किया था across the emitter resistance RE. ये कैपेसिटर जो है क्या करता है, इट इज द बाईपास कैपेसिटर, इट बाईपासेस द AC एमीटर करंट टू द ग्राउंड. और ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगी 1/ω/C. ठीक है, तो इसकी जो रिएक्टेंस या इम्पीडेंस जो है इट विल बी क्वाइट लो इन द मिडल एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. व्हाई? बिकॉज जो हमारी इम्पीडेंस और रिएक्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम इम्पीडेंस होगी. तो ये जो हमारा बाईपास कैपेसिटर है CE, इसकी इम्पीडेंस जो है वो ज्यादा होगी for the low frequency range और impedance कम होगी in the middle and high frequency range. Therefore, at all these frequencies, the capacitor pass AC to the ground. अगर हम middle और high frequency range की बात करते हैं तो वहां पर जो bypass capacitor है CE, it will offer less resistance to the AC component. तो जितना AC component होगा that can easily be passed from this capacitor to the ground. पर लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है, बाईपास कैपेसिटर की इंपीडेंस या रिएक्टेंस जो है वो हमारी ज्यादा होती है एंड इट इज कंपैरेबल टू दिस एमीटर रेजिस्टेंस RE. तो इस वजह से क्या होता है, द एमीटर इज देयरफॉर नॉट एट ग्राउंड पोटेंशियल फॉर AC. The emitter current IE divides itself along two parts flowing through CE and RE. The effective input voltage, that is the voltage between the base and emitter, is thus reduced. The output voltage of the amplifier will thus be reduced further. इसका मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसीज पे जब बाईपास कैपेसिटर हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा AC कंपोनेंट को, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में जो हमारी रिएक्टेंस है बाईपास कैपेसिटर की दैट विल बी कंपैरेबल टू दिस एमीटर रेजिस्टेंस RE. तो उस केस में जो हमारा एमीटर करंट होगा, हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा एमीटर करंट आया इट विल डिवाइड इटसेल्फ अलोंग द टू पार्ट्स. कुछ पार्ट CE की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट जो है हमारा वो RE की तरफ चला जाएगा. सारा का सारा AC कंपोनेंट जो है वो अब CE की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि वो हाई रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है AC कंपोनेंट को. तो कुछ कंपोनेंट हमारा RE की तरफ भी जाएगा. ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी अक्रॉस द एमीटर, दैट मीन्स द वोल्टेज एट द एमीटर टर्मिनल VE जो है इस केस में वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी. अगर वो इंक्रीज हो जाएगी, VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE. अगर VE हमारी इंक्रीज होगी, द वोल्टेज एट द एमीटर, तो हमारा जो VBE है वो रिड्यूस हो जाएगा. So if the effective input voltage is reduced, then what happens? अगर input voltage ही कम हो जाएगा तो output voltage भी कम होगा. So the output voltage of the amplifier will thus be reduced further. So these are the two reasons that are responsible for the lower voltage gain in the low frequency range. The first reason is the high reactance offered by the coupling capacitor CC at low frequencies. Another one is the high reactance offered by this bypass capacitor CE at low frequencies. Now what happens at the middle frequencies? In the mid frequency range, जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टेंस जो है हमारी कम होगी. तो कपलिंग कैपेसिटर जो है वो हमारा अलाउ करेगा जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट था उसके AC कंपोनेंट को पास ऑन करने के लिए टू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, सो द इंटायर आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ द फर्स्ट स्टेज विल पास थ्रू दिस coupling capacitor CC and will become the input signal of the next stage. So in this case जो हमारा voltage gain होगा it will be maximum. Also फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है तो जो बाईपास कैपेसिटर है CE उसकी रिएक्टेंस भी कम होगी तो वो अलाउ करेगा AC कंपोनेंट को पास ऑन होने के लिए अपने से एंड इट विल गो टू दी ग्राउंड. तो हमारे पास जो इंटायर इनपुट वोल्टेज होगी दैट विल नाउ अपीयर अक्रॉस द बेस एंड द
एमीटर। तो अगर हमारा जो बाईपास कैपेसिटर है सीई वो भी अगर लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा एसी को, तो उस केस में जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, द इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज VBE, द बेस टू एमीटर वोल्टेज, वो भी जो है हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। नाउ सो in the mid frequency range the voltage gain is maximum. Now what happens at high frequencies? At high frequencies the gain of the amplifier reduces. Why is it so? हम अगर ये बोले कि high frequency है, that means जो कैपेसिटर है हमारे, they are offering less reactance to the AC component, then why at high frequencies the voltage gain decreases? It decreases because we should not forget जो हमारा voltage gain है that depends upon the AC current gain beta also. हमने voltage gain लिखा था A is equal to minus GM into RC prime. जहाँ हमारा GM क्या है? GM जो है हमारा, this is the ratio of AC current gain beta and the input resistance RI. तो हमारा जो voltage gain है, this is directly proportional to this current gain beta. तो अगर हमारा बीटा जो है वो डिक्रीज होगा तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो भी डिक्रीज होगा, बिकॉज वोल्टेज गेन जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गेन. So what happens, the current gain beta जो है it is also a frequency dependent quantity. So what happens at high frequencies the value of this beta decreases. जो current gain beta होता है this is inversely proportional to frequency. So at high frequencies what happens, ये जो current gain beta है the value of current gain beta decreases at high frequencies, जिसकी वजह से जो voltage gain होता है amplifier का it reduces as the frequency increases. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी वोल्टेज गेन जो है इट इज इंक्रीजिंग, इट इज स्मॉल बट इट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, एंड इन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इट इज फेयरली कांस्टेंट एंड द मैक्सिमम, एंड देन इट डिक्रीजेस एट हाई फ्रीक्वेंसीज. और ये हमने स्टडी किया दैट व्हाई दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज देयर in case of this RC coupled amplifier or the two-stage RC coupled amplifier. So thus within the low frequency range, the voltage gain increases with increase in frequency and it becomes almost constant for the middle frequency region. Then it again decreases in the high frequency region with increase in frequency. Now इसके बाद अब इसमें एक last चीज और देखनी है, the two frequencies mu1 and mu2. mu1 जो है हमारा, ये जो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज है mu1 एंड mu2, ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं? mu1 हमारी फ्रीक्वेंसी है इन दी लो फ्रीक्वेंसी रीजन, mu2 हमारी फ्रीक्वेंसी है इन दी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. mu1 को हम बोलते हैं लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और mu2 को हम बोलते हैं हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज mu1? द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड mu2 इज द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं? ये वो फ्रीक्वेंसी होती हैं जब हमारा वोल्टेज गेन 1/√2 टाइम्स हो जाता है द वोल्टेज गेन फॉर मिड फ्रीक्वेंसी रीजन. मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में वोल्टेज गेन मैक्सिमम है, मतलब ये हमारी दो वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जब हमारा जो वोल्टेज गेन है वो 1/√2 हो जाता है ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज गेन. तो अगर मैं वोल्टेज गेन जो है लेट्स से उसको ए से डिनोट कर रही हूँ, इन्होंने यहाँ पे ए से डिनोट किया है. सो A maximum is representing the maximum voltage gain or the voltage gain in the mid frequency region. जब हम इसका 1/√2 करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ है वो दो जगह कट करता है. जो लोअर फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो कट करता है उसको हम mu1 बोलते हैं, और जो हायर फ्रीक्वेंसी है जिसको वो कट करता है उसको हम mu2 बोलते हैं. mu1 इज द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, mu2 इज द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर देखो अगर हमारी वोल्टेज गेन मैक्सिमम 1 है, ठीक है, जब हम इसका 1/√2 करेंगे दैट मीन्स अराउंड जो है हम 0.7 के अराउंड आ गए. तो ये जो है इस ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, ठीक है. तो इसको जो ये यहाँ पर कट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग mu1, और जो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन पे कट कर रहा है उसको हम बोलते हैं mu2. दिस mu1 इज द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो हमारा गैप है mu2 माइनस mu1 दिस रिप्रेजेंट्स द बैंड विड्थ. mu2 माइनस mu1 दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द
high cutoff and the low cutoff frequencies is called the band width. यहाँ पर देख लो इसको. There are two frequencies, mu1 and mu2, in the low and high frequency region, where the voltage gain becomes 1 by √2 times the maximum voltage gain, or the voltage gain for the mid frequency region, which is maximum. These frequencies are called low cutoff and high cutoff frequencies respectively. These frequencies are also called half power frequency in the low and high frequency regions, as the power at these frequencies is reduced to half of that at the mid frequency value. इस लाइन का मतलब मैं अभी समझाऊंगी. नेक्स्ट आगे देखो, जो ये डिफरेंस है mu2 minus mu1 between these two frequencies is called the band width. यूजुअली mu2 हमारा बहुत ज्यादा होता है mu1 से, सो हम कह सकते हैं band width mu2 minus mu1 is nearly equal to mu2, or it means that we can neglect mu1 with respect to mu2. But usually जो bandwidth का हम formula use करते हैं, that is mu2 minus mu1, the difference between the low cutoff and the high cutoff frequency. और जैसे जैसे जो है हम stages जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा 2-stage amplifier था, जैसे जैसे अगर हम stage बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो bandwidth है वो कम होती जाएगी. ठीक है, so this is about the RC coupled amplifier. यहाँ पे ये एक लाइन और थी, इस लाइन का मतलब मैं बता देती हूँ. ये क्या कहता है कि ये इन फ्रीक्वेंसीज को mu1 और mu2 को हम लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, और इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इन दी लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. Why? Because the power at these frequencies is reduced to half of that at the mid frequency value. पावर हमारी क्या होती है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड द वोल्टेज? पावर इज v स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, तो लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जब हम निकालते हैं तो उसको हम निकालते हैं एट 1 by √2 of the maximum value of the voltage gain, or you can say 1 by √2 times the voltage gain for the mid frequency region. पावर को जब हम निकालते हैं तो पावर हमारी क्या है? v स्क्वायर अपॉन r. तो अगर हमारी वोल्टेज 1 अपॉन √2 होगी तो हमारी पावर क्या हो जाएगी? वो हाफ हो जाएगी उसका स्क्वायर. ठीक है, तो पावर जो है हमारी वो हाफ हो गई. इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी mu1 और mu2 है, अगर इसको मैं पावर के टर्म्स में लिखती हूँ तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी in the low and high frequency region, as the power at these frequencies is reduced to half of that at the mid frequency value. इन फ्रीक्वेंसीज पे जो हमारी वोल्टेज है वो 1 अपॉन √2 टाइम्स हो गई मिड फ्रीक्वेंसी के. तो इन फ्रीक्वेंसीज पे जो हमारी पावर होगी वो 1/2 टाइम्स होगी. क्यों? बिकॉज हमारी वोल्टेज जो है वो 1 by √2 टाइम्स थी एंड पावर इज v स्क्वायर अपॉन r. अगर हमारी वोल्टेज एट mu1 एंड mu2 1 by √2 टाइम्स हो गई ऑफ द वोल्टेज इन द मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, तो हमारी इन दोनों mu1 और mu2 पे जो पावर होगी दैट विल बी 1/2 टाइम्स द पावर एट द मिड फ्रीक्वेंसी रीजन. So this is about the RC coupled amplifier. यहाँ पर हमारे different types of amplifiers खत्म हो गए. नेक्स्ट क्लास में जो है we'll proceed with the feedback in amplifiers.